إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، نہ ان سے چھڑکو اور ان سے نرمی کے ساتھ بات کرو، گفتگو کرو. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہ، اولاد کے اوپر والدین کا کیا حق ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جواب دیتے ہیں ہما جنت کا بنارو کا، یعنی کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. جنت بھی بتلایا، دوزخ بھی بتلایا. آئیے میں بتلا دو جنت کیسے ہے اور دوزخ کیسے ہے. یعنی اگر تم نے ان کی فرما برداری کی، ان کی اطاعت گزاری کی، ان کا کہنا مانا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو سمجھ لو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اگر تم نے ان کی نافرمانی کی، ان کو دکھ دیا، ان کو ستایا، ان کو ظلم پر ظلم کیا تو سمجھ لو تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. اس لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا بنارو کا، یعنی کہ وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین کی طرف پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے تب؟ صحابہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا کے اندر زندہ ہیں اور وہ انہیں پیار و محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حج مقبول کا ثواب کماتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں دوستو، آج والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو مارا اور پیٹا جاتا ہے. اسی پر بس نہیں بلکہ انہیں قتل بھی کر لیا جاتا ہے. آج ہمارا یہ معاملہ والدین کے ساتھ کتنا بدترین ہے، کتنا برا ہے، کتنا برا سلوک کیا جا رہا ہے والدین کے ساتھ. میرے پیارے بھائی دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو، میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں بھی اس سے ناراض ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے اور اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے. میرے پیارے بھائی دوستو، اگر کسی شخص سے، کسی نوجوان سے اس کے والدین ناراض ہو، اللہ حدیث میں آتا ہے اگر جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو وہ شب قدر جیسی اہم رات میں بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جس رات میں انسان کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر کوئی توبہ کرتا ہے اس کی توبہ ترنت قبول کر لی جاتی ہے. اس رات کے وقت میں بھی، اس رات کی تاریکی میں بھی اللہ رب العالمین اس بندے کو اللہ کی رحمت، اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اگر تم کسی مکان میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں دروازے کو کھولنا پڑے گا، اور آپ کو جنت میں داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں دروازے کو کھولنا پڑے گا، یعنی اپنے والد کو خوش کرنا پڑے گا، تبھی تم جنت میں جا سکتے ہو. جنت ماں کے قدموں میں ہے اور جنت کا دروازہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو میرے پیارے بھائی دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی نیک اولاد اپنے والدین سے قبر کی زیارت کرتا ہے، ہر جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس کے لیے جہنم سے نجات بھی دیتا ہے اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جنگ میں تشریف لے کر آتے ہیں، اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گھر میں روتا ہوا چھوڑ کر جہاد میں شرکت کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں. ہمارے آخری نبی
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है, खबर मिलती है कि अगर कोई नौजवान जंगी जिहाद में अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर जहाज में तशरीफ लेकर आया है, तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलाते हैं, कहते हैं नौजवान इधर आओ और तो इसी वक्त वापस लौट जा, चला जा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, जानते हो क्या कहते हैं, तुम्हें मालूम नहीं है कि तेरी जन्नत तेरे घर में मौजूद है। वो नौजवान हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है अल्लाह के रसूल मैं जन्नत के लिए यहाँ आया हूँ, आपको कैसे खबर मिली? कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ नौजवान मैंने सुना है कि तू अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर इस जिहाद में शिरकत के लिए तशरीफ लेकर आया है। ऐ नौजवान तू वापस चला जा और जिस तरीके से तुमने अपने वालिदैन को बुलाया है उस तरीके से उनको हंसा दे, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों के पीछे पड़ी हुई है। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का मकूला है अल इंसान, बड़े बुजुर्गों का मकूला है कि ये चाहिए तो उस्ताद की खिदमत करो और दौलत चाहिए तो माँ बाप की खिदमत करो। एक मरतबा हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत सादिया हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ लेकर आती हैं। जैसे ही हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चौखट को पार करती है, हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पर पड़ती है। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं और अपनी चादर मुबारक को उनके कदमों में डाल देते हैं। सहाबे किराम परेशान हो जाते हैं, ये मंजर देखकर दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अरे ये कौन खुशनसीब खातून है, ये कौन खुशनसीब औरत है जिसको देखकर सरवरे कायनात ने, पूरी दुनिया के सरदार ने अपनी चादर मुबारक को उसके कदमों में डाल दिया। तो सहाबा किराम को ये खबर मिलती है, ये पता चलता है कि ये आपकी दूध पिलाने वाली माँ यानी कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, मिल्लत के नौजवानों, जरा अंदाजा लगाओ कि किस तरीके से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की इज्जत और आबरू को नवाजा है। और आज हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हुए चले जाते हैं। अगर नवाब मेरे प्यारे भाई दोस्तों, आइए मैं एक वाकया बतला दूं। एक बहुत ही भयानक वाकया है कि एक मरतबा एक नौजवान के बारे में हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है। उनका नाम अवैस करनी है, जिन्हें हज़रत अवैस करनी के नाम से जाना जाता है। वो अपने माँ बाप की बीमारी और तकलीफ की वजह से, उनकी खिदमत में दाखिल होने की वजह से, उनकी खिदमत करने की वजह से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिंदगी भर हाजिर नहीं हो पाते हैं। 1 साल 2 साल की बात नहीं है, जिंदगी भर हाजिर नहीं हो पाते हैं। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से फरमाते हैं, ऐ सहाबा किराम सुनो, अगर तुम्हारी उस नौजवान से यानी कि अवैस करनी से मुलाकात होती है तो मेरा सलाम कह देना और मग़फ़िरत की दुआ कराना। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, कलेजा थाम कर जिगर पर हाथ रखकर सुनिए। बहुत ही भयानक वाक़या है कि हज़रत अलक़मा जो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ सहाबी है, उनका जिक्र हदीस में बहुत से मकामात पर हदीसों में आया है। वो उनके अंदर एक बुराई पाई जाती थी, उनके अंदर एक बुरी आदत पाई जाती थी कि वो अपनी बीवी माँ को बीवी पर तरजीह दिया करते थे। वो अपनी माँ को बीवी पर तरजीह दिया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, जब उनके मरने का वक्त आया, जब उनकी आखिरी सांस चलने लगी, मरने का वक्त करीब हो गया, जानती हो क्या हुआ? उनकी जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। सहाबे किराम परेशान है, हैरान है कि अरे आज अलक़मा को क्या हो गया, इसके जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है, कलमा नहीं निकल रहा है। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि अरे आज अलक़मा की आखिरी सांस चल रही है, अलक़मा की सांस की आमदोरफ्त खत्म हो रही है और उसके जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद को बुलाते हैं, उनके वालिदा को बुलाते हैं, कहते हैं अलक़मा की माँ इधर आओ और जरा मुझे बतलाओ कि अलक़मा तुम्हारी नजरों में कैसा है, अलक़मा तुम्हारी नजरों में कैसा है। उनकी माँ फरमाती है, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलक़मा बहुत ही अच्छा है,
पांचों वक्त की नमाजें अदा करता है, रोजे बहुत रखता है, सबको खैरात भी बहुत ज्यादा करता है। हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाहता कि अलकमा क्या करता था, क्या करता है और क्या करेगा, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अलकमा की माँ, जरा मुझे बताओ कि अलकमा और तुम्हारा ताल्लुक कैसा है। अलकमा का ताल्लुक और तुम्हारा ताल्लुक ऐसा है। उनकी माँ फरमाती है, अल्लाह के रसूल, मैं मुझसे नाराज ना करती हूँ। क्या फरमाती है? अल्लाह के रसूल, मैं मुझसे नाराज ना करती हूँ। मालूम करते हैं कि वजह क्या है। वजह क्या है? अलकमा की माँ अलकमा से नाराज ना करती थी और इस वजह से उनके ज़ुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा है। वजह क्या है? तो पता चलता है कि अलकमा अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दिया करता था, यानी कि बीवी की बातों को ज्यादा मानता था और माँ की बातों को कम सुना करता था। जब माँ बीमार होती थी, बीमार कोई दवा लाने के लिए कहती थी, अगर उसी समय बीवी कह देती थी, मेरा फला काम है, मेरा ये फला चीज घट रहा है, जरा मुझे ला कर दे देना, वो अपनी माँ को छोड़ देता था, अपने माँ से दूर हो जाता था। पहले अपनी बीवी की फरमाइश को पूरा करता था, उसके बाद अपने माँ की फरमाइश को पूरा करता था। तो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, जानते हो हमारे आखिर नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अलकमा की माँ, तुम अपने बेटे यानी अलकमा को माफ कर दो। क्या कहा? अलकमा को माफ कर दो, वो बड़ी परेशानी में है, बड़ी तंगी में है, आज उसकी सांस की आमदोरफ्त खत्म हो रही है, वो बड़ी परेशानी में, उसे माफ कर दो। अलकमा की माँ कहती है, मोहम्मद, अरे अल्लाह के रसूल, आप कहते हैं मैं उसे माफ कर दूं? नहीं माफ कर सकती, उसने मेरा बड़ा जी दुखाया है, मुझे बहुत तकलीफ दी है। आपको तकलीफ दिया होता तो आपको मालूम होता कि आपके दिन को क्या गुजरती, और आप मुझसे कह रहे हो माफ कर दो, मैं माफ नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को बुलाते हैं, कहते हैं, बिलाल इधर आओ, जाओ लकड़ी का एक गट्ठर लेकर आओ और उसको जला दो, उसमें आग लगा दो। हज़रत बिलाल ऐसा कर देते हैं। अलकमा की माँ से हज़रत अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, फिर बिलाल से फरमाते हैं, ऐ बिलाल पूछते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, इसको जलाने के बाद क्या करोगे? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इसको जलाने के बाद मैं अलकमा को भी इसी में जला दूंगा। इसको जलाने के बाद मैं अलकमा को भी इसी में जला दूंगा। इतना सुनते ही माँ की ममता जोश में आती है, कहती है, ऐ अलकमा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद, तू मेरे बेटे को मेरे सामने जलाएगा, तू मेरे बेटे को मेरे सामने आग में जलाएगा, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ अलकमा की माँ, क्या तुझे मालूम नहीं कि कुछ दिनों के बाद अलकमा इससे कहीं ज्यादा, इस आग से 70 गुना ज्यादा आग में जलाया जाएगा, तो क्या तुझे बर्दाश्त करने की ताकत है? अलकमा की माँ कहती है, तब तो और नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तू चाहती है कि अलकमा को आग में न जलाया जाए तो तू उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे, और तेरी माफ करने की वजह से हो सकता है अलकमा आग से बच जाए, आग में जलने की से बच जाए। अलकमा की माँ उसे माफ कर देती है, ऐसे अलकमा को माफ कर देती है, तब जाके उनके जुबान से कलमा जारी होता है। जानते हो अलकमा की माँ सिर्फ क्या थी? बददुआ नहीं थी, सिर्फ नाराज थी, गुस्सा थी, और उसकी वजह से अलकमा की जुबान से कलमा जारी नहीं हो रहा था। आज हमारी माँ हमें बददुआ दे देती है, हमसे गुस्सा नाराज रहती है। जरा अंदाजा लगाओ, तुम अपने माँ के साथ इतनी बेबुरती करते हो, तुम्हारा क्या अंदाजा क्या होगा, तुम्हारी क्या हालत होगी। और जब हज़रत अलकमा को मदीना मुनव्वरा में दफनाया गया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंसार और मुहाजिर सुन लो, अगर कोई उस पर खुदा की लानत हो, उस पर अल्लाह की लानत हो, जिसने अपने बीवी को माँ पर तरजीह दिया, ना उसके फराइज को भूलेंगे, ना उसके नवाफिल को भूलेंगे, यानी कि अपनी माँ की बातों को ज्यादा मानने वाला, उसके बाद उसको कम करने वाला, अपनी बीवी को बातों को बढ़ा देने वाला, ज्यादा मानने वाला, चाहे पांचों वक्त की फर्ज नमाजें अदा करता रहे, रात में सोकर उठने के बाद तहज्जुद की नमाजें अदा करता रहे, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है। नमाज पढ़ने से जन्नत हासिल नहीं हो सकती जब तक की माँ को खुशा कर ले। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, अरबी का मक़ूला है, अल इंसान अब्दुल इंसान, इंसान एहसान का गुलाम है। किसका गुलाम है? एहसान का गुलाम है। और वो एहसान किसका है? वालिदैन का एहसान है। वो एहसान किसका है? वालिदैन का एहसान है। जरा अंदाजा लगाओ कि माँ की
हम पर कितना एहसान है, क्या क्या माफी हम पर एहसान है, मैं बतला दूं मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। माँ मुसलसल 9 महीने हमल उठाए फिरती है, उसके बाद जब बच्चे की पैदाइश होती है, माँ जब हमल उठा लेती है 9 महीने के लिए, उसका जो निजाम होता है खाने पीने सोने जागने उठने बैठने का वो तराम बराम हो जाता है। उसके बावजूद ना वो दौड़ सकती है, ना वो कूद सकती है, ना वो मीठी नींद सो सकती है। और जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है, माँ को कितना तड़पाता है, कितनी तकलीफ देता है। बहुत सी माएँ ऐसी होती है कि उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बच्चे को बचाने के खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देती है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इससे बड़ा एहसान हम पर और क्या हो सकता है कि कोई इंसान, कोई माँ हमारे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। उसके बावजूद आगे सुनो, माँ क्या करती है, दूध की शक्ल में बच्चे को दूध की शक्ल में अपना खून देती है। माँ मुसलसल 2-2.5 साल 2 साल 2.5 साल दूध पिलाती है। दरअसल वो खून दूध नहीं होता बल्कि माँ का खून होता है, जो दूध की शक्ल में अपने बच्चे को देती रहती है और उसे खबर भी नहीं होती कि मेरा खून कम हो रहा है। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, ये अल्लाह की बरकत है, ये अल्लाह की बरकत है जो माँ अपने बच्चे को दूध की शक्ल में खून देती हुई चली जाती है, लेकिन माँ को एहसास नहीं होता है। और आगे सुन लो मेरे प्यारे भाई दोस्तों, जब बच्चा बीमार हो जाता है, जब बच्चा बीमार हो जाता है, माँ सोती नहीं है, बैठे बैठे रात गुजार देती है, रात भर बैठी रह जाती है, उसे नींद भी नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि वो बच्चे के लिए परेशान है। बच्चे की हालत देखकर उसे नींद नहीं आती कि मेरा बच्चा आज परेशानी में है। और जब तुम्हारे जुबान से कलमा जारी नहीं होगा तो माँ का क्या हाल होगा? माँ क्या सोचेगी, मेरे बच्चे को जुबान से आज कलमा जारी नहीं हो रहा है, इसका क्या मतलब है? मेरे प्यारे भाई दोस्तों, माँ मुसलसल बैठ कर गुजार देती है लेकिन सोना दोबारा नहीं करती है। जब ठंडी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम होता है, बच्चा पेशाब कर देता है, माँ उस भीगे बिस्तर पर सो जाती है और बच्चे को उठाकर सोती जमीन पर कर देती है। इससे बड़ा आसान और हम पर क्या हो सकता है? और वो माँ के इस एहसान को जुबान और कलम दोनों बयान करने से आजिज हो चुके हैं। तो आज हम कौन से इंसान है, हम क्या चीज है जो माँ के इस एहसान को, बाप के इस एहसान को हम बयान करते रहे? मेरे प्यारे भाई दोस्तों, वो बाप जिसने अभी बच्चे की शक्ल सूरत भी नहीं देखी, जिसने बच्चे की अभी शक्ल सूरत भी नहीं देखी, नर्सों और डॉक्टर्स के लिए सोने जागने उठने बैठने का इंतजाम करता है, सोने जागने उठने बैठने खाने पीने का इंतजाम करने लग जाता है कि मेरा बच्चा जब पैदा होगा इस पर सोएगा, इसमें खाएगा, इस पर बैठेगा, इससे चलेगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, इससे बड़ा एहसान क्या सकता है कि बच्चे की शक्ल भी ना देखे, पैदा भी नहीं हुआ है, उससे पहले ही उसका सोने जागने उठने बैठने का इंतजाम करने में लग जाए, नर्सों और डॉक्टरों से राब्ता में रहता है, खुलूसे नियत के साथ अल्लाह से दुआ करता है, कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन आज वलादत का मामला आसान फरमा, मुझे दे और साले औलाद अता फरमा। और इंसान पाक का इंसान कि जब हम पैदा हो जाते हैं, ऐ नौजवानों, वालिदैन ने अपनी तमन्नाओं का गला घोटा है, अपने जज्बात को कुर्बान किया है, अपनी आरज़ुओं को दफन किया है, मगर तेरी सारी हसरतें पूरी की। अगर आज तू जवान है और बुढ़ापे की आग में जल रहे हैं तो सुन ले, एक दिन ऐसा आएगा तो भी बुढ़ापे की आग में जलाया जाएगा, तू भी बुढ़ापे की आग में जलेगा, तू सहारे का मोहताज होगा, तू लाठी टेकता हुआ चलेगा, सहारे का मोहताज होगा, लेकिन कोई सहारा देने वाला न होगा, तो सहारे का मोहताज होगा लेकिन कोई सहारा देने वाला न होगा। ऐ नौजवानों, इस अपने बुढ़ापे का ख्याल कर लो, अपने वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा बन जाओ, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिल टूट जाए, अर्श आज़म को हिला दे, अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे दुश्मन बन जाए, फरिश्ते तुम्हारे दुश्मन बन जाए, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाए, फरिश्ते तुम पर लान भेजने लगे, अल्लाह और उसका रसूल तुमसे नाराज हो जाए और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख हो जाए।